Buddhism. Other schools of thought also emerged which didn't accept the authority of the Vedas and developed their own systems. One of them is Buddhism. ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥଟ୍ସ ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ ବାହାରିଲେ ଯିଏକି ବେଦ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିଚାଲିଲେ। ତ ସେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। About 2.5 millenniums ago, a young prince named Siddhartha Gautama was born in Lumbini. ପାଖାପାଖି 2.5 millenniums ago ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲୁମ୍ବିନୀରେ। ଲୁମ୍ବିନୀ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର କ'ଣ ନେପାଳ, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ନେପାଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। Depending on the sources they use, scholars have come up with widely different conclusions as regards the precise year of his birth. କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଇଟା କନଫର୍ମ ହୋଇପାରୁନି ଯେ କେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସମୟରେ। In chapter 4 we choose 560 BCE as an approximate year. In any case it makes no difference to our story here. ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଚାପ୍ଟର 4ରେ 560 BCE ବୋଲି ମାନିବା, ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା କିଛି କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ ହେଲା। As the story goes, then Siddhartha Gautama grew up living a protected life in the palace. ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ନିଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବିଲକୁଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲେ, ନିଜ ମହଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିଥିଲେ, ବୁଝିଲା ତ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁଧୋଦନ ହେଲା। ଏଥିରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଖାଲି କହିଦେବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସୁଧୋଦନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ, କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ନାଁ ରଖିବା କ'ଣ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ପୁଅ ଇଏ ବଡ଼ ହେଇକି ତା'ର ଅଧା ବୟସ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ତୁମ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ଇଏ କ'ଣ ମହାରାଜ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜା ଯଦି ତୁମେ ମହାରାଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ, ଏକଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ବିଲକୁଲ ବି ତାକୁ ମହଲ ବାହାରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କାଳେ ମୋ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ବଟ୍ ୱାନ୍ ଡେ at the age of 29 he asked to be driven through the city in a chariot. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 29 ଏଜ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୋ ଶଗଡ଼ରେ ବସିକି, ମାନେ ରଥରେ ବସିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ସହର ବୁଲିକି ଆସିବି। And for the first time in his life come across an old man, a sick man and a dead body. ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି। ଇଏ ତାଙ୍କ ମହଲ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହି ଅଲସୋ ସ ଆନ୍ ଆସେଟିକ୍, ୟା ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିଲେ, ଆସେଟିକ୍ ହୁ ଆପିୟର୍ଡ ଟୁ ବି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ପିସ୍। ଆସେଟିକ୍ ହୁ ଏନଗେଜେସ୍ ଇନ୍ ଏ ରିଗରସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟୁ ଆଟେନ୍ ଏ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍, ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ ଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କନସିୟସନେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇଥିବ, ତାକୁ ଆସେଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ହୁ ଆପିୟର୍ଡ ଟୁ ବି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ପିସ୍। ଫଲୋଇଂ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡିସାଇଡେଡ଼ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଲିଭିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କ'ଣ କଲେ, ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଲିଭିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ତେଣୁ ପଛରେ ତା'ର
ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପୁଅଟେ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଲେ। ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅନ୍ ଫୁଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ascetic, meeting other ascetics and scholars, he searched for the root cause of suffering in human life. ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ପାଦରେ ହିଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ବୁଲିଲେ ଗୋଟେ ascetic ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହିସାବରେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ascetics ଆଉ ସ୍କଲାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଲେ, ମିଟିଂ କଲେ। ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଏତେ ମିଳୁଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ମେନ୍ କାରଣଟା କ'ଣ। ଆଫ୍ଟର ମେଡ଼ିଟେଟିଂ ଫର୍ ମେନି ଡେଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି ଆଟ୍ ବୋଧ ଗୟା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଅଛି, ସେ ବୋଧ ଗୟାରେ ସେ ଗୋଟେ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି ତଳେ, ମାନେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ମେଡ଼ିଟେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି। And he attained enlightenment. He realized that avidya means ignorance and attachment are the source of human suffering, and conceived a method to remove these two causes. तो से कहले जे से जगह से बसिले तांको एनलाइटनमेंट मिलला, माने ज्ञान और उदय होला से जगह रे। तेणु से रियलाइज तापर कले जे इग्नोरान्स अविद्या, तेणु इग्नोरान्स करवा और अटैचमेंट, जन को अन्य जन सहित अटैचमेंट रहिबो, कनेक्शन रिलेशनशिप रहिबो। ये दुईटा जाक जिनस होची ह्यूमन सफरिंग पाई बहुत ही खराब। तेणु से आडप्ट करने गोटे मेथड टू रिमूव दीज टू कजेस। तेणु दुईटा जाक कजेस बा कारण को एमती किसी मेथड द्वारा आम या काढ़ी पार, उपाड़ी फोपाड़ी देवा है, तो रिमूव करने चेष्टा कले। सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज द बुद्ध, व्हिच मीन्स द एनलाइटेंड और अवेकेंड। तो शेष जो ना थिला बुद्ध, जार अर्थ है एनलाइटेंड, माने जे बहुत बुद्धि पाई बा जे अवेकेंड, जे पूरा अवेयर थी, तार किसी यार छड़ू दुनियार कथा सी भाव नथिबे, से बहुत ही ज्ञानी थे, बुझल। तेणु से भाई लोक को कहुए बुद्ध। तेणु बुद्ध नाटा ये दिगला, बुद्धिरु बुद्ध, तापर बुद्धिमान, ये सब। तेणु बुद्धर अर्थ है ज्ञानी पुरुष है। The Buddha started teaching what he had realized, including the idea of ahimsa, which is generally translated as non-violence, but originally means non-hurting or non-injuring. तेणु बुद्ध से स्टार्ट कले, समस्त को ज्ञान बांटिले, से भाई टीचिंग देले, निज ज्ञान को से अन्य सहित बांटिले, जो थी कि से देखले, से जहाँ जहाँ रियलाइज कले, जहाँ अनुभव कले, ताकू से अन्य को बतैले। जमती कि अहिंसार उपाय, जोटा कि ट्रांसलेट आम कहे नॉन वायलेंस बोली आम ट्रांसलेट करदे, कि एक्चुअली तार अर्थ हो अहिंसार अर्थ हो कौन, नॉन हर्टिंग और नॉन इंजुरिंग। तेणु भाइलेंस आड़े तो कथा जाऊनी बिल्कुल, अन्य जन को हर्ट न करवा, इंजुर न करवा होची नॉन वायलेंस। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन ए सिंसियर इनर डिसिप्लिन। तेणु से पुणी नजर क्या देते जे इन सिंसियर इनर डिसिप्लिन, मोरा एकदम स्ट्रिक्टली निजे निजे निज मन भितर निज शरीर रे तुम डिसिप्लिन आनिया पड़ो। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेस दिस सिंपली। तेणु से कौन कहते ताकू आम एवं देखा। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मेनी पीपल मे बैथ हियर इन सैक्रेड रिवर्स, but one is pure in whom truth and dharma reside. Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 times. तो कौन सी पानी द्वारा कहीं प्योर हो,
जदि एमती होता ताले बहुत गुड़े लोक से नदी जाई खाली गाधो था और सेटा सैक्रेड रिवर कहीदे था पवित्र नदी। किंतु जड़े जदि प्रूफ प्योर हवा चाहूँगी ताले केमती हो पार केवल ट्रुथ आउ धर्म निज मन विषय निज मन भीतर यदि रखिला ताले हम सत्य और धर्म बाटर चलो। तो कनकरिंग वन सेल्फ जन को जितबार अच्छी इज ग्रेटर दैन जन को जितवाठू अधिक तुम जितिपार क्या कनकरिंग 1000 मैन तुम बैटल फील्ड रे 1000 थर 1000 लोक मारिबा टू केते अधिका तुम गोटे लोक को जदि जीतीगल निज मन द्वारा हिंसा द्वारा नुहे है से कथाटा कहले। द बुद्ध फाउंडेड द संघ मीन्स ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक। बुद्ध तैयारी कले संघ तैयारी कले संघर अर्थ है गोटे एमती गोटे ग्रुप जोठी भिक्षुक माने थिबे मंक्स माने थिबे। भिक्षुक मंक्स माने कौन जो माने भिक्ष मागंती एमती किसी बाबाजी जो माने भिक्षा करिकी चलिबे और नॉन्स कह जाए who dedicated themselves to practicing and spreading his teachings जे कि निजर जीवन को से डेडिकेट कर देछंदी से टीचिंग गुड़ा को प्रैक्टिस करिवारे स्प्रेड करिवारे। तो हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडेड द होल ऑफ एशिया वाज एनॉर्मस as we will discover later it is still perceptible today। तेणु तांकर ये जो इंडिया पर तांकर इन्फ्लुएंस रहा भारत उपर तांकर प्रभाव पड़ला एवं ता सहित एशियार सबुआड़े तांकर प्रभाव पड़ला बहुत ही एनॉर्मस बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ला जोटा कि आम आगू डिस्कस करवा सॉरी डिस्कवर है आगू को आउ किंतु एबे जाए भी सेटा परसेप्टेबल होगी अच्छी वर्तमान जाए भी आम ताकू मानुचे। तापर आसला जैनिज्म। Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient। तो जैनिज्म तापर आसले ये मध्य बहुत इम्पोर्टाट आउ रूट जदि आम देखा ताले ये मतलब बहुत ही पुराना। जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम प्रिंस वर्धमान was born into a royal family in the early 6th century। तेणु एबे 6th सेंचुरी कथा ये तेणु BCE तार पाखापाखि आमर 2500 वर्ष तल कथा आम देखा ताहले सिद्धार्थ गौतम को भली वर्धमान राजकुमार मध्य जांग ना थिला प्रिंस वर्धमान सीए मध्य सेमती गोटे रॉयल फैमिली जन्म होता रजांग परिवार से राजकुमार थिले। हिज बर्थ प्लेस वाज नियर द सिटी ऑफ वैशाली जोटा कि बर्तमान मॉडर्न डे बिहार से वैशाली सिटी पाखे ही तांकर जन्म होता। एट द एज ऑफ 30 जो 30 वर्ष होता ही डिसाइडेड टू लिव हिज होम घर छाड़ी जीवे बोली से निश्चय कले गो इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एवं तांको स्पिरिचुअल नॉलेज खोजार बहुत इच्छा थिला तेणु से ताको खोजिले तेणु घर द्वार छाड़ी पलैले। ही प्रैक्टाइज्ड एन एस्थेटिक डिसिप्लिन से को डिसिप्लिन पालन कले ना एस्थेटिक एकदम संथ। एंड आफ्टर 12 इयर्स 12 वर्ष पर ताको इनफाइनाइट नॉलेज मिला और सुप्रीम विजडम। ही बिकेम नोन एज महावीर और ग्रेट हीरो। तो महावीर वीर मान भर महान बोली ना डकागला तार अर्थ हो ग्रेट हीरो एंड स्टार्टेड प्रिचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड। तेणु से कौन कौन सब रियलाइज करते ता विषय से लोक मानू ज्ञान देले। डोंट मिस आउट आम देखा द वर्ड जैन और जैन कम्स फ्रॉम जिन्ना मीन्स कनकरर। तो जिन्नार अर्थ है कनकरर जी कि अन्य मानू जीतब है तो जी कनकर करें लड़ाई करी जीति थाए
ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଜିନାରୁ ଆସିଛି ଜୈନ ବା ଜୈନ, ଜୈନ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଜୈନ କହୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଡଜଣ୍ଟ ରିଫର୍ ଟୁ ଦ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେରିଟୋରି ଅର୍ ଏନିମିଜ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କାହା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଆଟାକ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଜିତିବା, ତା ଅର୍ଥଟା ଏଇଟା ନୁହଁ। ବଟ୍ ଟୁ ଦ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟାଚମେଣ୍ଟସ୍ ସୋ ଆଜ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ଜିତିବେ, କାହାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଜିତିଗଲେ ନା କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଜ୍ଞ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ସବୁକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାମାନେ ସେ ଜିତିଗଲା ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ ମିଳିଯିବ ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ହେଇଗଲେ ବାବାଜୀ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବାବା। ଜୈନ ଟିଚିଂସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅହିଂସା, ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଆଣ୍ଡ ଅପରିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଜୈନ ଟିଚିଂ ଭିତରେ ଅହିଂସା ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଅନେକାନ୍ତବାଦ ରହିଲା ଏବଂ ତା ସହ ଅପରିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ? ଦିଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thought। ତେଣୁ ये जो आइडिया गुड़ा रहा ये लार्ज एक्सटेंट एकदम अधिकରୁ ଅଧିକ आड़े शेयर है बुद्धिज्म सहित एंड वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट मध्य थिला से समय ता सहित मध्य ये लोक माने याकू मध्य चलेले and are central to Indian culture, and the first may be illustrated by this saying of Mahavira। तेणु से इंडियन कल्चर को मध्य बढ़ेले एमती कर आगू गले महावीर कौन कहते देखीदे। ऑल ब्रीदिंग एक्जिस्टिंग लिविंग सेंटिमेंट क्रिएचर्स शुड नॉट बी स्लेन और ट्रीटेड विथ वायलेंस नॉर अब्यूज्ड नॉर टर्मेंटेड नॉर ड्रिवन अवे। तेणु जो मैंने ब्रीदिंग कर बंची है तो आउ बहुत ही सेंटिमेंट क्रिएचर्स गुड़ाक जो मैंने बहुत ही निरीह है संवेदनशील क्रिएचर्स गुड़ाक जीवजंतु गुड़िक शुड नॉट बी स्लेन, तो बिल्कुल भी क्षति पहुँचाया कथा नुह। नॉर स्लेन ना भाइलेंस द्वारा ट्रीट करा ना अब्यूज करा ना से टर्मेंटेड करा ना कुआड़े फोपड़ा नॉट ड्रिवन अवे है करवा कथा नुह। लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन डिफरेंट सिंपल टर्म्स। लास्ट दुटा कौन? अनेकांतवाद मीन्स नॉट जस्ट वन, तेणु जड़े नुह ये एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव दैट इज द ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट्स। जो तुम कह खाली ट्रूथ ट्रूथर बहुत गुड़ा एस्पेक्ट्स रही एंड कैंट बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। तेणु गोटे स्टेटमेंट ताको आम डिस्क्राइब करवा असंभव। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजिशन एंड एडवाइजेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजिशंस लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। तेणु अपरिग्रहर अर्थ है परिग्रह करवानी, नॉन पोजेसन बिल्कुल आम निज पाखे पजेस करवा नहीं, कौन जिनस रखा नहीं, निज अधिकार छाड़देवा तो एवं क्या सहित ना एडवाइस डिटाचमेंट तुम अलग कर लो निजक अटैचमेंट रखनी डिटाचमेंट कर तार उल्टा मटेरियल पोजिशन कौन जिनसर कौन वस्तुर आग्रह बिल्कुल करवा उचित नुहे। तेणु से कहले जे तुमको जहाँ प्रकृत में जीवन में दरकार अच्छी केवल से ही तुम निज पाखे रख जहाँ अतिशय आवश्यक गोटे जीवन बचापी ताठू अधिक किसी दरकार नहीं। जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम ह्यूमन्स टू इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैंट लिव विदाउट वन अनदर। तेणु जैनिज्म इनसिस्ट करुच्ची बेसी प्रभाव पकाउछ कार्य उपरे बेसी गुरुत्व दौची इंटरकनेक्टेडनेस उपरे जे सबू क्रिएचर मानक भितर गोटे
इंटर कनेक्टेडनेस अच्छी गोटे संपर्क रही आम इंटर डिपेंडेंस निजे अन्य जनक अन्य जन मो उपर ह्यूमन ठार आरंभ करके इनविजिबल ऑर्गेनिज्म जाए जोड़ाक प्रकृति में नहांती से मैंने सबकि नेचर लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग बीइंग्स समस्त कनेक्शन रही तेणु से जड़े अन्य जन को सपोर्ट कर तेणु आम अन्य जन को साहाय्य करवा सपोर्ट करवा कैंट लिव विदाउट वन अनदर जड़े अन्य जन को छाड़देले ये बंचीपर ना मनकर गछ लता नथिबो जीवजंतु नथिबो तो मनीष बंची पार तो साइंटिस्ट स्टडीड नेचर फ्लोरा एंड फौना हैव अगेन एंड अगेन कन्फर्म्ड दिस डीप ट्रूथ तो जो साइंटिस्ट माने नेचर फ्लोरा फौना को माने फ्लावर एनिमल्स को माने प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ को स्टडी कर सी कथार बारंबार कन्फर्म होती एते डीप ट्रूथ से कहुई हला द जातक टेल्स which have delighted generations of Indian